अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम पढ़े एसी जनरेटर। एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है? इट प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड in a magnetic field in a magnetic field, then there is change of magnetic flux. When there is change of magnetic flux, induced EMF in the coil, its कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है? एक कॉइल ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर कॉइल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्लिप रिंग्स आर और आर डैश, नंबर 4 कार्बन बुशेस बी और बी डैश। when the in the diagram you see that there is a हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। फील्ड लाइन्स आर जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। द कॉइल इज रोटेटेड, coil rectangular coil A B C D placed in a magnetic field B, and the coil is rotated with a uniform angular velocity in the magnetic field, and there are two slip rings, ring R or R dash, with the carbon bushes B or B dash. When the coil is rotated in the coil, then the rings are attached with the carbon bushing B or B dash के साथ. Now let us consider the coil is moved. Let us consider the coil is rotating in the anti-clockwise direction. किस तरह rotate करती है? In the anti-clockwise direction. When the coil is rotate in the anti-clockwise direction, then the vertical side or AB of the loop is moving with the velocity v in the magnetic field B. If the angle between V and B is theta, if the angle between V and B is equal to theta, then there is a induced EMF. Induced EMF क्या होगी? Induced EMF is equal to AB is equal to किसके इक्वल होगी? V B L साइन ऑफ थीटा। बी के हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, एल के हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर और मूव करी विद वेलोसिटी वी के साथ विद एंगल साइन थीटा। अब हमारे पास दूसरे क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द साइड सी डी इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। और ये दो साइड का टू साइड्स डी ए और सी डी। अब हमारे पास क्या है? डी ए और इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 0। वो किस लिए 0? बिकॉज द चार्ज आर नॉट मूव इन दिस साइड। नो वी दैट करंट इज इंड्यूस्ड, देयर इज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का direction of the induced current is same as that of the force. When the coil is rotated, in the coil is rotated, suppose this is the direction of the magnetic field and this is the direction of the field of velocity v. Now curl the curve of your finger. We need to curl the finger, then the thumb will give the direction of the force. Like this, when the coil rotates according to the right hand rule, when the coil V rotates toward DB, curl of the fingers show the rotation and thumb will show the direction of the force. Direction of the force is same as that of direction of the force is same as that of the induced current. That's why induced current की direction क्या होगी? The charge will move from bottom to top. अब हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आई अपवर्ड होगी। और इधर से हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी इन द साइड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। When the V rotates toward DB,
curl of the finger show rotation of the vector, and thumb will show the direction of the force, and direction of force show the current. Then the direction current will flow from A to B, top to bottom. If that's why the current is flowing in this direction. Now we find that the induced EMF is equal to, total induced EMF is equal to induced EMF AB, VBL sin theta, CD, VBL sin theta. There is no induced EMF in the BC or DA is equal to 0. Now combine the total induced EMF. Total induced EMF is equal to VBL sin theta plus VBL sin theta, then is equal to 2VBL sin of theta. If there are n number of turns, coil have n number turns, then becomes 2n omega RL sin of theta. V की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, V is equal to omega R, because the coil is rotated with the constant velocity. Then 2RL, अब हम इसमें RL को अलहदा कर लें तो हमारे पास क्या आएगा 2RL. What is the 2RL? 2RL is the ये हमारे पास कॉइल की लेंथ क्या है, L है, उसका रेडियस क्या है, R है. अब ये जब रोटेट करेगी इसको 2RL किसके इक्वल होगा, उसके एरिया के इक्वल हो जाएगा. देन 2RL की जगह हम लिख लेंगे 2RL इज इक्वल टू A. Then the question becomes n omega 2RL RL sin of theta, n omega AB sin of theta. अब हम इसमें कह देते हैं कि ये वाली जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये इतनी चीज़ जो है n ओमेगा ए बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है. किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट. मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा n ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा जब होगा, तो ये किसके होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ के होगा. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ साइन ऑफ थीटा इव डिवाइडेड विद आर, then divided by r, then the question becomes this. Or we know that I is equal to, according to D'Ahm's law, I is equal to induced EMF over r. तो हमारे पास I नॉट क्या होगा, I नॉट इज द मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू फिलो नॉट ओवर r. then the question becomes I is equal to I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t. I is equal to I नॉट साइन ऑफ ओमेगा की जगह हमारे पास क्या आएगा, सॉरी थीटा की जगह आ जाएगा ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह में पता होता है 2 पाई एफ के. तो हम वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी. तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन ऑफ द करंट आ गया है. अब हम ये देखते हैं कि करंट जब प्रोड्यूस होता है तो एक साइकिल किस तरह कंप्लीट होता है बिटवीन V और B के साथ. जब हमारे पास V और B जब होंगे, एंगल कितना होगा, जब हमारे पास टाइम 0 होगा तो हमारे पास करंट भी क्या होगा, 0 होगा. V और B जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे. व्हेन V और B के दरमियान एंगल थीटा होगा तो करंट हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम. दिस वन इज द मैक्सिमम करंट डिनोटेड बाय I नॉट. व्हेन V एंड B इज इक्वल टू, एंगल कितना है 180 है, थीटा और 180 है, तो करंट कितना होगा, ये देखें करंट हमारे पास कितना होगा, 0 होगा. जब V और B के दरमियान एंगल कितना होगा, 270 होगा, तो I हमारे पास किसके इक्वल होगा, I नॉट. जब हम 2 पाई पर पहुँच जाएंगे तो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, फिर इनको V और B के दरमियान दोनों पैरेलल हो जाएंगे. इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी. इस तरह हम अल्टरनेटिंग करंट से क्या फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मोशनल EMF के साथ. थैंक यू.